Hello everyone, welcome back. This is our third and final lecture on organization of the body. In previous two lectures, we have discussed about the skeleton, that is the bony framework of the body, and the body cavities where different organs are located and their contents as well. Now in today's lecture, we are going to cover the surface anatomy. So we have covered the skeleton, that is the bony framework of the body. Also, we have covered body cavities. In body cavities, we have covered four major cavities. First one was cranial cavity. Second was thoracic cavity. Third was abdominal cavity. And fourth was pelvic cavity. Also, we have covered their contents. Like what is in the cranial cavity, what is in the thoracic cavity, what is in the abdominal cavity, and what is in the pelvic cavity. We have covered their boundaries. बाउंड्रीज में हमने पढ़ा है एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, सुपीरियर एंड इंफीरियर. ये हमने वॉल्स पढ़े और बाउंड्रीज. फिर हमें आज क्या पढ़ना है, सरफेस एनाटमी. So before moving to the definition of surface anatomy, we should ask ourselves a question: why we are going to read the surface anatomy? उसका रीजन ये है कि most of the organs जो हमारी बॉडी में है, they are located deep inside the body. So in order to assess these organs or in order to locate these organs, we have to use some external body features that are present on the surface of the body. So अगर उन organs तक हमें पहुंचना है और उन organs की condition पे हमें देखना है और assess करना है उन organs को, so we use these external body features. So without cutting the body or without opening the body, we assess the features of body organs that are located inside the body cavities or that are deep inside our body. So what is the definition of surface anatomy then? Surface anatomy is a study of external body features, or we can say these body features landmarks, that can be examined by, जो हम कैसे देख सकते हैं, either by visual inspection or by palpation. जो हम visual inspection में क्या होता है, that we can see with our eyes, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं. लाइक कोई कलर देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर स्क्लेरा की बात मैं करूंगा, येलोइंग ऑफ स्क्लेरा. सो आपने एक बॉडी पार्ट एसेस किया बाय विजुअल इंस्पेक्शन, और रेडनेस अगर होगी बॉडी पे तो ये भी आप देख सकते हो, या रैश होगा. सो दीज आर द फीचर्स जो आप कैसे देख सकते हो ऑन द बॉडी सरफेस बाय विजुअल इंस्पेक्शन और बाय पैल्पिटेशन. पैल्पिटेशन में क्या, आप बूनी प्रोमिनेंसेस को और मसल्स, या और एक एग्जांपल है पल्स. पल्स जो हम देखते हैं, वी कैन फील दीज थिंग्स बाय कैसे, बाय फिंगर्स. बूनी प्रोमिनेंस होगी कहीं पे, हम फिंगर्स यूज करेंगे तो वी कैन फेल्ट द बोन. सिमिलरली मसल्स होगी तो हम कहते हैं ये मसल है, और पल्स हम देखते हैं बाय यूजिंग द फिंगर्स. सो व्हाट इज then surface anatomy? Surface anatomy is the study of external body features that can be examined either by visual inspection or by palpation. visual inspection में usually colors आते हैं, या इसमें और एक एग्जांपल आएगी, स्वेलिंग होगी कहीं पे. स्वेलिंग अगर बॉडी पे होगी तो आप ये देख सकते हो आंखों से कि यहाँ पे स्वेलिंग है. सो दिस इज इंक्लूडेड इन सरफेस एनाटॉमी. नाउ व्हाट आर दी सरफेस लैंडमार्क्स? इट इज अ फीचर. ये तो एक फीचर है दैट वी कैन, या तो हम क्या ये देख सकते हैं, और वी कैन फील on the outside of the body and use as a reference point to locate something deeper inside. इसका मतलब क्या है? For example, अगर मैं यहाँ पे हार्ट और लंग्स की बात करूँगा, हार्ट एंड लंग्स आर लोकेटेड इन, कहाँ पे है, thoracic cavity.
हार्ट एंड लंग्स आर लोकेटेड इन थोरैसिक कैविटी। सो थोरैसिक कैविटी को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? यू यूज एक्सटर्नल फीचर्स एज रेफरेंस पॉइंट्स। क्या रेफरेंस पॉइंट आप यूज? एक तो रिब्स होती है और स्टर्नम। आप कहते हो ओके दिस bone located on the anterior side of the body, this is the sternum, and these are ribs. So on the right side of the sternum is the right lung, on the left side of the sternum is the left lung, and in between the lungs आप क्या कहते हो? sternum के right side and left side. Here it is right lung and here it is left lung, and in between the lungs क्या कहते हो आप? heart है। so आपने precise location की हार्ट की या लंग्स की, आपने प्रिसाइज लोकेशन दी बाय यूजिंग क्या? रेफरेंस पॉइंट्स। रेफरेंस पॉइंट्स कहाँ पे थे? दे आर लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द बॉडी, दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। जो आपने आइदर यू फील, आपने फील किया स्टर्नम को, अपने रिब्स को फील किया, एंड टू लोकेट समथिंग डीपर इनसाइड। डीपर क्या था? हार्ट एंड लंग्स। सो दिस इज द डिफिनीशन। नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस में क्या है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सरफेस एनाटॉमी? जो हमने पहले ही बताया कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, दे आर लोकेटेड डीप इनसाइड द बॉडी। सो इन ऑर्डर टू assess these body organs हम यूज करते हैं सरफेस एनाटॉमी। और इन ऑर्डर टू assess the organ of the body, it is not necessary कि आपको फुल बॉडी एसेस करनी हो। अगर आपको कोई ऑर्गन एसेस करना हो तो वहाँ पे भी सरफेस एनाटॉमी लगेगी। अगर आपको कोई ऑर्गन एसेस करना हो तो वहाँ पे भी आपको क्या लगेगा? सरफेस एनाटॉमी यूज हो जाएगी। सेकंड, यू हैव टू लोकेट द डीपर स्ट्रक्चर्स एज, जैसे यहाँ पे हमने लोकेट किया लंग्स और हार्ट को हमने लोकेट किया बाय यूजिंग सम सरफेस लैंडमार्क्स। उसी के हिसाब से आपको फिर कोई एग्जामिनेशन करना है, यानी फिजिकल एग्जामिनेशन आपको करना है या इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो आप करोगे बाय यूजिंग सरफेस एनाटॉमी। फिर उसके बाद अगर आपको कोई प्रोसीजर करना है, उस प्रोसीजर को एक्यूरेटली और सेफली करने के लिए आपको सरफेस एनाटॉमी पता होनी चाहिए। इसे मैं और एक एग्जांपल से आपको समझा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, जब हमने एब्डोमिनल रीजन को डिवाइड किया था, हमने इसे 9 रीजन्स में डिवाइड किया था। दिस वाज द अम्बिलिकल रीजन, दिस वाज एपिगैस्ट्रिक, एंड दिस इज हाइपोगैस्ट्रिक। दिस इज राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, दिस इज लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, दिस इज राइट लंबर region, this is left lumbar region, and this is left iliac fossa, and this is right iliac fossa. So these were the regions of abdomen. हमने 9 regions में डिवाइड किया था abdomen. So अब पेशेंट एक आ रहा है कि he is saying कि I have a pain on the right side of the upper abdomen. So वो ये एरिया इंडिकेट करता है। जब आपको सरफेस एनाटॉमी पता होगी तो आप क्या करोगे? आप इस एरिया को फिजिकल एग्जामिनेशन जब आप करोगे, आप इस एरिया को फॉर एग्जांपल पाल्पिटेट करोगे। पाल्पिटेट किया बाय हैंड्स, बाय फिंगर्स। आपने वहां पे कुछ स्टिफनेस दिखी आपको या कुछ और, दैट इज यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर है? लिवर। मोस्टली यहाँ पे लिवर है। तो जब आपने पाल्पिटेट किया, आपको कुछ लगा है, तो आपने उसी हिसाब से फिजिकल एग्जामिनेशन जब किया, दैट इज आपने पहले क्या किया? आपने डीपर स्ट्रक्चर लोकेट किया, फिर आपने फिजिकल एग्जामिनेशन किया, अब वो कुछ लगा, देन आपने इन्वेस्टिगेशन रखी। फॉर एग्जाम्पल, आपने यूएसजी रखा उस पेशेंट को, यूएसजी एब्डोमेन फोकस्ड ऑन लिवर। जब ये किया आपने तो उसमें क्या निकला? आपको कुछ एबनॉर्मलिटीज लगी, एबनॉर्मलिटीज ऑन इन्वेस्टिगेशन। जब आपको इस इन्वेस्टिगेशन में कोई एबनॉर्मलिटी, आपने फर्दर क्या किया? यू गो फॉर एग्जांपल एलएफटीज पे गए आप। फिर उसके बाद एलएफटीज पे जब आप गए तो उसी हिसाब से आपने पेशेंट को डायग्नोज किया कोई डिजीज, और उसी के बाद आपको कोई प्रोसीजर करना हो, वो प्रोसीजर एक्यूरेटली और सेफली हो जाए, उसके लिए आपको क्या पढ़ने की जरूरत है? सरफेस एनाटॉमी। नाउ कमिंग टू द सम मेजर क्लिनिकल एप्लीकेशन। नाउ कमिंग टू सम क्लिनिकल एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस एनाटॉमी। फर्स्ट इज इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। सपोज यू नीड टू गिव एन इंजेक्शन टू अ पेशेंट, और ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है। सो हाउ यू कैन प्लेस द इंजेक्शन, वेयर यू प्लेस द इंजेक्शन? वो इंजेक्शन प्लेस करने के लिए आपको क्या पता होनी चाहिए? सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी फॉर एग्जांपल, इसमें एक मोस्ट कॉमन रीजन की अगर मैं बात करूंगा, वो है डेल्टॉइड रीजन में हम देते हैं सम इंजेक्शंस। डेल्टॉइड रीजन में कहाँ पे हम देते हैं? डेल्टॉइड मसल पे। सो अब डेल्टॉइड मसल पे इंजेक्शन दोगे तभी आप इंजेक्शन दे पाओगे
जब आपको डेल्टॉइड मसल की सरफेस एनाटमी पता होगी, देन यू कैन अवॉइड, क्या आप क्या यहाँ पे अवॉइड करते हो, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। सो ब्लड वेसल्स और नर्व्स को अवॉइड करने के लिए आपको इंजेक्शन मसल पे देना है, और वो इंजेक्शन मसल पे आप तभी दे पाओगे जब आपको सरफेस एनाटमी पता होगी उस मसल की। अदरवाइज मसल तो बहुत जगह है लोकेट बॉडी में, तो आपको ये इस कॉमन रीजन पे अगर आपको देना है तो यू शुड नो द एनाटमी ऑफ दिस रीजन। सेकंड एग्जांपल इज वेन पंक्चर। वेन पंक्चर में क्या है कि आपको नाउ यू हैव टू टेक द सैंपल, ब्लड सैंपल अगर आपको निकालना है तो आप कहाँ पे, यू लुक फॉर सुटेबल वेन, उस वेन पे जाओगे जहाँ पे इजीली आपको सैंपल मिलेगा। सो उसमें भी मोस्ट कॉमन रीजन जो है वो है एंटी क्यूबिटल फोसा, यहाँ पे हम सैंपल निकालते हैं। और एंटी क्यूबिटल फोसा में किस वेन, मीडियन क्यूबिटल वेन। ये एंटी क्यूबिटल फोसा कहाँ पे लोकेटेड है, इट इज अ शैलो डिप्रेशन located on the anterior of the elbow। सो आपको इस वेन से सैंपल निकालना है, यू शुड नो द एनाटमी ऑफ दिस, वेयर इट इज दिस एंटीक्यूबिटल फोसा। एंटीक्यूबिटल फोसा की एनाटमी, सरफेस एनाटमी जब आपको पता है, देन यू कैन इंसर्ट द नीडल एंड टेक आउट द सैंपल इजीली। उसके बाद पल्स पॉइंट्स। नाउ अब हार्ट बीट कैसे फील करते हो ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, उसके लिए कुछ पॉइंट्स है, वी कॉल देम एज पल्स पॉइंट्स, बिकॉज ये हर जगह पे नहीं होती है, बिकॉज आर्टरीज आर डीप इनसाइड आवर बॉडी, बट एट सम प्लेसेस आर्टरीज क्या है, दे आर क्लोज टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। वो कौन कौन से पॉइंट्स है, फॉर एग्जाम्पल रिस्ट पे है, वहाँ पे कौन सी आर्टरी है, रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी है तो यहाँ पे इसे हम कहते हैं रेडियल पल्स। इसी और एग्जाम्पल क्या है, नेक, नेक पे कौन सी आर्टरी है, कैरोटिड आर्टरी, इसे कहते हैं कैरोटिड पल्स। सिमिलरली अगर मैं लोअर लिम्ब्स की बात करूंगा तो पॉप्लिटियल फोसा, ये कहाँ पे होता है, बिहाइंड द नी। और यहाँ पे कौन सी आर्टरी होती है, पॉप्लिटियल आर्टरी, और इसे हम क्या कहते हैं, पॉप्लिटियल पल्स। And it is very important in patients with deep venous thrombosis in order to assess the circulation। सर्कुलेशन को एसेस करने के लिए हम ये देखते हैं कि पॉप्लिटियल पल्स है कि नहीं, दैट मीन्स अगर पॉप्लिटियल पल्स है तो ब्लड सर्कुलेशन है। और उसके बाद है हार्ट असेसमेंट। फॉर एग्जांपल आपको S1 एंड S2, दीज आर द टू हार्ट साउंड्स, ये आपको सुननी है, तो आप कहाँ पे सुनोगे। सो हम कहते हैं कि अगर हमें S2 सुननी है एंड हमें S1 सुननी है, S2 हम कहते हैं कि प्रोडोमिनेटली एयोटिक वैल्यू पे हम सुन सकते हैं, और पल्मोनिक वैल्यू पे भी सुन सकते हैं, बट प्रोडोमिनेटली कहाँ पे, एयोटिक वैल्यू। और S1 हम कहाँ पे सुन सकते हैं, ट्राइकस्पिड वैल्यू पे। बट ट्राइकस्पिड वैल्यूज कहाँ पे है, ये आपको लोकेट करने हैं। You will locate these values by using surface landmarks। So aortic value कहाँ पे हम लोकेट करते हैं, it is located on a right sternal border, second intercostal space। So यहाँ पे आप स्टेथोस्कोप रखोगे और आप S2 साउंड सुन सकते हो। वो आपने क्या लोकेट किया, aortic value by using surface landmarks, that is second intercostal space and right parasternal border। Similarly pulmonic value कहाँ पे है, it is on left sternal border, second इंटरकोस्टल स्पेस। तो यहाँ पे आप क्या सुनोगे, यहाँ पे भी आप S2 सुन सकते हो, बट प्रोडोमिनेटली यहाँ पे एयोटिक वैल्यू। उसके बाद और एक पॉइंट आता है, वी कॉल्ड इट एज अर्बिस पॉइंट।
Erb's point कहाँ पे है? It is below the pulmonic valve. This is aortic valve, this is pulmonic valve, और यहाँ पे एक Erb's point होता है, उसके बाद tricuspid valve होता है यहाँ पे. So यहाँ पे आप both S1 and S2 सुन सकते हो. ओके, उसके बाद tricuspid valve पे अगर आपको S1 साउंड सुननी है तो it is predominantly कहाँ पे हम सुन सकते हैं? Tricuspid valve. But tricuspid valve कहाँ पे होता है? It is located and fifth intercostal space, left sternal border, mid clavicular line. So आप यहाँ से देखोगे फिफ्थ intercostal space कहाँ पे है? Mid clavicular line and left sternal border on the left side of the sternum. So यहाँ पे आप क्या सुनोगे? S1. So आपने हार्ट साउंड को एसेस किया by using surface landmarks, और we can say आपने क्या किया? आपने एक इंटरनल ऑर्गन को एसेस किया by using the structures that are present, yes, that you located on the surface of the body. Then we have pressure injury sites. Pressure injury sites में क्या है कि there are some sites in our body that have bony prominences. और जहाँ पे bony prominences हैं there is low blood supply. Blood supply यहाँ पे कम होती है. कौन कौन से एरियाज है? एग्जाम्पल्स मैं अगर दूंगा, फर्स्ट इज सैक्रम, हील्स है, ग्रेटर ट्रोकेंटर्स फीमर पे होते हैं, एंड वी हैव एल्बोज. इन पे क्या है? दे हैव लो ब्लड सप्लाई. अगर इफ दे remain in the same position, अगर ये एक ही पोजीशन पे फॉर अ लॉन्ग टाइम, हमने कोई मूवमेंट नहीं किया या एक ही जगह पे हम बैठे या एल्बो को हमने ऐसे रखा और हमने प्रेशर जनरेट किया बिटवीन एल्बो एंड दिस एल्बोज प्रोमिनेंस एंड एक्सटर्नल सरफेस, तो हमने क्या किया? हमने प्रेशर इंक्रीज किया एंड उससे क्या होता है? इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ इंजरी. तो इंजरी हो सकती है, तो उन्हीं को कहते हैं हम प्रेशर इंजरी साइट्स और अल्सर साइट्स. सो अगर आपको कोई पेशेंट आ रहा है, वो आपको कह रहा है कि मुझे एल्बो में पेन हो रही है, तो अगर आपको पता है कि यहाँ पे अल्सर साइट है, तो आप हिस्ट्री उसकी जान लोगे कि आप प्रोलॉन्ग टाइम के लिए एल्बो को किसी चीज़ के साथ दबा तो नहीं रहे हो. फॉर एग्जांपल अगर कुर्सी पे प्रोलॉन्ग बैठ रहा है तो उसके ऑन द साइड्स ऑफ द चेयर पे वो एल्बो नहीं रख रहा है, तो यू यूज दीज थिंग्स फॉर लोकेटिंग और फॉर डायग्नोसिंग अ डिजीज और लोकेटिंग ए स्ट्रक्चर. नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, दैट इज वर्टिबल लैंडमार्क्स. वर्टिबल लैंडमार्क्स में क्या है? C7 हमें होती है. जो C7 है, इट इज इजीली फेल्ट एट द बैक ऑफ द नेक. बैक ऑफ द नेक पे क्या है? आप इजीली इसे हाथ से देख सकते हो. तो अगर आपको कोई पेशेंट आया, ही इज सेइंग और शी इज सेइंग आई हैव अ बैक पेन, कहीं पे वो दिखा रहा है हाथों से कि यहाँ पे मुझे पेन हो रही है, तो अब आपको प्रिसाइज एरिया निकालना है कि इसको एक्चुअल में कहाँ पे पेन हो रही है. तो आप क्या करोगे? आप C7 लोकेट करोगे, देन यू विल कैलकुलेट अकॉर्डिंगली, और आप कोई एरिया फॉर एग्जाम्पल उसको फिर लंबर वर्टिब्रे में पेन होती है, लंबर वर्टिब्रा में उसको पेन है, तो देन उसी के हिसाब से आप क्या करोगे? आप इन्वेस्टिगेशन रखोगे, लाइक एक्सरे या MRI लोअर सुपाइन, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट. सो वो कंडीशन आपने किससे आइडेंटिफाई की? बाय यूजिंग सरफेस लैंडमार्क्स. और उस सरफेस लैंडमार्क किस में हमें आता है? सरफेस. सो विद दैट वी हैव completed our introduction to anatomy actually, and we have also covered organization of the body in introduction to anatomy. So this was all about today's lecture. If you find this lecture useful, do like the video, subscribe the channel, and if you have any suggestions or questions, do let me know in the comments below. I will see you in the next lecture. Thank you.